Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel MBA Shivani, and so far we have seen difference between management and administration. Today we're gonna see levels of management. See, this is also one of the important topics from exam point of view, and you may see question in the examination, maybe in your end semester examination, maybe in your class test CA1 CA2 kind of things if you have in your college. Then, and if you don't even if you are not in doing MBA or any other kind of course, you may see this type of question in your school, maybe in 11th standard, maybe in 12th standard. Not in 11th, actually in 12th, because we have management in 12th standard in business studies actually. So yeah, this question particularly, it's really important. This topic is really important. So let's get started without wasting of further. So today we're going to see the meaning of level of management only. First, level of management का meaning समझते हैं. What is this? Levels of management refers to the hierarchy of managers in an organization. क्या refer करता है? एक hierarchy, एक होता है ना क्रम, जो जिसमें ऊपर कौन है, नीचे कौन है, मिडिल में कौन है, वो चीज़ होता है levels of management. Every organization divides its managerial work into different levels so that responsibilities can be performed effectively. हर मैनेजर, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिवाइड करी जाती है मैनेजरियल वर्क को डिफरेंट लेवल्स पे. ऐसे थोड़ा ना कि सभी एक जैसा काम कर रहे हैं, सभी लेवल पे एक जैसा सेम काम हो रहा है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट right actually. And mainly the 3 level are mentioned below. So जो 3 level है वो कौन से हैं देखते हैं. Top level management, we can also say strategic level. Then the middle level management, it is a tactical level. Then the last is lower level or supervisory management. We say this operational management, operational level actually. तो तीनों level समझ में आया. पहला top है, दूसरा middle है, तीसरा lower level है. टॉप लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल क्यों कहा गया है देखते हैं. अभी क्या है, अभी वीडियो शुरू है एंड आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द वीडियो. प्लीज फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गोना लर्न समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ इट. ये क्वेश्चन पक्के से एग्जाम में आता है, लिख लो क्योंकि मैंने फेस किया है मल्टीपल टाइम्स. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. सो ईच लेवल हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर. हर लेवल की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अथॉरिटी होती है और डिसीजन मेकिंग पावर होती है. ऐसे नहीं कि कोई किसी की भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर लेगा. नो, एवरी लेवल हैज़ देयर ओन सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर. नाउ लेट्स देम ब्रेक देम डाउन वन बाय वन. सो पहले हम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक लेवल. मैंने आपको पहले ही वो बोला था एक्चुअली. सो मीनिंग देखते हैं फटाफट इसका. टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द हाइस्ट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट कंसिस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स who are responsible for setting the overall direction and long-term goals of the business. Top level management is the highest level. Highest level है organization में. first of all ये mind में रखना है. second क्या consist करता है, senior executives को. senior जो executives होते हैं, executives both are correct, तो उनको include करता है. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द बिजनेस. क्या होते हैं ये? सेटिंग ओवरऑल डायरेक्शन देंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे. दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज बनाते हैं, मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाते हैं एंड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. इनका मेनली जो काम है, तो डायरेक्शन देना, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना, सेट करना उनको, फॉर्मुलेट पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना और इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स टाइमली अचीव कर पाए. This level is accountable to the owners or shareholders and is responsible for the overall success and failure of the organization. ये किसके लिए accountable है, मतलब किसके सामने ये लेवल accountable है? ये owners, shareholders, and responsible भी है success और failure of the organization. कि organization success होगा या fail होगा. क्यों? क्योंकि अब जैसी policies बनेगी वैसा organization काम करेगा, lower level उसके according चलेगा, तो at the end जो गोल अचीव होंगे या नहीं होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्योंकि इन्हीं की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, इन्हीं के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करवाया जाता है. पर अगर बीच में किसी और की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इवेल्युएट किया जाता है एंड करेक्टिव डिसीजन लिया जाता है.
कंट्रोलिंग आती है पिक्चर में। तो मेंबर्स देखते हैं फटाफट से, टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए बीओडी, चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया, एमडी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। आप कैसे लर्न कर सकते हो, बीओडी, चेयरमैन, सीईओ, एमडी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लगा दिया तो वाइस प्रेसिडेंट अपने आप लिख के आ जाना। एमडी हो गया तो सीईओ एमडी एक ही मतलब होता है ना, ये पोस्ट बहुत हाई फाई पोस्ट है तो आपको दिमाग में रहेगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया तो चेयरमैन आएगा, मतलब 2 सी से पोस्ट है और मैनेजिंग डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर वर्ड से भी 2 पोस्ट है और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये 2 पोस्ट है। सी से चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप एक लाइन से भी इनको लर्न कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और नहीं आ रहा है, बहुत इरिटेटिंग लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम टैक्टिकल लेवल भी कहते हैं। तो मीनिंग देखते हैं पहले। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये पहले सबसे पहला मेनली काम है, ये लिंक के रूप में काम करता है, लिंक की तरह काम करता है, ब्रिज कह लो इसको, ब्रिज की तरह काम करता है। किस में, टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन whom, top level and lower level. It is responsible for implementing the policies and plans formulated by top management. ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, सबसे मेनली जो काम है इसका, ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट पॉलिसीज के लिए और प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए। जो किसने बनाया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, क्योंकि ये थोड़ा ना बना रहा है, ये उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सेकंड जो मिडिल लेवल का काम होता है, ये इम्प्लीमेंट करना है उन पॉलिसीज प्लान्स को जो कि फॉर्मुलेट किसने किए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिडिल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एफिशिएंटली। इनका काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हैं सब में, और इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव हो पाए। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही कोऑर्डिनेशन करने का और इम्प्लीमेंट करने का, पॉलिसीज बनाने का नहीं, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का। मेंबर्स देखो इनके, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। अब आपको इसमें इस चीज़ को, ये तो बहुत सिंपली लर्न हो जाएगा, आपको सिर्फ मैनेजर पोस्ट ध्यान में रखनी है। मैनेजर हर किसी डिपार्टमेंट का इसमें ही आएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो चाहे वो एचआर मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, प्रोडक्शन का हो और रीजनल हो, प्लांट हो या ब्रांच हो, और ये ह्यूमन रिसोर्स हो, सारे मैनेजर्स की पोस्ट आपको बस थोड़ी सी दिमाग में रखनी है दोस्तों, एंड यू आर गुड टू गो। अब लास्ट है जो कि है लोअर लेवल मैनेजमेंट। आई होप थोड़ा नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्लिक कर रहा होगा माइंड में। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसको हम सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी कह सकते हैं। जैसे अगर एमसीक्यू एग्जाम्स में आते हैं, एमबीए में आते हैं, हम मेरे एग्जाम में आए थे एक्चुअली, तो वहाँ पे हमें टिक करना पड़ता है। अगर लोअर लेवल का मैनेजमेंट का नेम आ रहा है और उन्होंने पूछा लाइक डज ऑपरेशनल लेवल परफॉर्म्स दिस टाइप ऑफ ड्यूटी, तो मुझे ऑपरेशनल लेवल ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं ऑपरेशनल लेवल क्या होता है। तो मेरे माइंड में मुझे पता होना चाहिए ऑपरेशनल लेवल कौन सा लेवल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और सुपरवाइजरी भी कौन सा, लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो ये डे टू डे टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है डज सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म्स द डे टू डे टास्क, आंसर इज येस, ट्रू, दे परफॉर्म। अगर फिर ऑप्शन में लिखा होगा कि डू दे परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टास्क, तो हमें टिक आउट करना है, पिक करना है, और वो हम देखेंगे अभी। पहले समझते हैं मीनिंग। लोअर लेवल मैनेजमेंट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. It directly supervises workers and ensures that day-to-day activities are carried out efficiently. मैनेजमेंट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये कौन सा लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि डायरेक्टली किससे डील करता है, ये डील करता है और सुपरवाइज करता है वर्कर से जो कि काम कर रहे होते हैं, एंड इंश्योर करता है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी एफिशिएंटली परफॉर्म हो। ठीक है, सुपरवाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंटल प्लान एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज़। जो इसमें सुपरवाइजर्स होते हैं। देखो अब मिडिल में क्या थे, मैनेजर्स थे,
और जो टॉप लेवल थे उसमें आपके डायरेक्टर्स थे, और अब इसमें कौन आ गए, सुपरवाइजर्स आ गए, फोरमैन आ गए, सेक्शन ऑफिसर्स आ गए, छोटे लेवल पे मतलब जो है। इनका काम क्या होता है, एम्प्लॉयज़ और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना, कि काम अच्छे से होना चाहिए। दिस लेवल हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कफोर्स एंड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होता है, वर्कफोर्स से होता है, जो कि वर्कर होते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाई, क्योंकि यही तो एट द एंड से टॉप लेवल ने तो सिर्फ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किसने किया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट इसको एग्जीक्यूट करता है, किसके थ्रू करवाता है एग्जीक्यूट, कौन करता है, वर्कफोर्स करती है। तो करवाने का काम किसका है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ये इंश्योर करता है कि डिसिप्लिन बना रहे, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होकर काम करते रहे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। देखा जाए तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा यू कैन से पावरफुल वर्क है, बिकॉज ये डाउन लेवल पे जाके इंश्योर करता है कि एक्चुअल में काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। मेंबर्स देखो कौन कौन होते हैं, सुपरवाइजर्स हो गए जो कि वो रखते हैं ना, कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, हु कीप्स एन आई, तो वो हो गए। फॉरमैन हो गए, सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, टीम लीडर्स हो गए, जिनके अंडर में टीम होती है, जो कि पूरे टीम को असिस्ट करता है, लेके चलता है कि कैसा क्या टीम परफॉर्म कर रही है। शिफ्ट इंचार्ज हो गया, है ना, ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स हो गए। तो दोस्तों ये थे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या था, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी सिर्फ हमने इनका मीनिंग समझा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इफ yes, let me know in the comment section and hit the like button please, and if no, let me know what's the reason, where have you lagged and missed, what you have like not understood. Please do let me know in the comment section. And next जो टॉपिक हम कवर करेंगे that is function of level of management। हम functions देखेंगे, टॉप लेवल का फंक्शन देखेंगे, मिडिल का, लोअर लेवल का। ऑल्दो बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी मीनिंग से ही कि क्या फंक्शंस हो सकते हैं, बट स्टिल we will going to cover this in a in-depth manner, because this question is also important from exam point of view. I hope friends you have enjoyed the video. If yes, please hit the like button, share it and subscribe to your own YouTube channel. I'll see you with another one just like this one. Till then friends, take care, bye bye, radhe radhe दोस्तों, radhe radhe।